Hello friends, I hope you're all doing good. I welcome you all for this final video of the International Relations Current Affairs for the month of May. And this is a part of the workbook program of the current affairs, where the workbook has already covered the current affairs of the other issues except for the IR and security issues that we cover here. The workbook is available on this Telegram channel here, and you can have a look at it. And the classes are available free of cost on the Unacademy app for viewing. I am the author of these two books, the International Relations by McGraw-Hill Education and the Current Affairs book for the 2021 prelims of the MCQs. These are the two courses that are coming up, that is the comprehensive course on IR on 1st of July and the comprehensive course on security on 8th of July. To access these courses, you can use PubNeet10 as a discount code and get a 10% discount. The other free courses include basically the current affairs course through the workbook, which can be accessed through this code PubNeet10 on the Unacademy app. This is a free of cost current affairs program where we cover current affairs from 6 different newspapers and in a workbook that is designed for the prelims and mains. And we'll also be having the quizzes that I plan to launch from the next month, that is from the month of July, which can be accessed free of cost for current affairs using the code PubNeet10. The GS core subject quick revision that already has started with Modern India is already going on, and subsequent videos are also being posted on the channel. And we are a part of here this particular program, that is the current affairs monthly basis from international relations and security issues. So as I explained that for the month of May, the current affair for IR has been divided into these three categories. We have already covered in the video number 1 summits in news, video number 2 the global bodies. This is the video number 3 that talks about the foreign policy initiatives in news. So let's get going. The first important foreign policy initiative in news that needs to be kept in mind, friends, is the Global Diabetic Compact. So why is it in news? It's important to be remembered that 2021 also marks the 100th year for what is called as, discovery of insulin. So which is one of the very important components when we talk about the diabetes as a disease as such. And this Global Diabetic Compact has been launched basically by WHO. In India, the diabetes has emerged as one of the very life-threatening diseases, and this particular global compact of the WHO has basically an objective, that is to tackle diabetes and ensure that there is adequate awareness about risks associated with diabetes through a deliverable-based approach. So what is a deliverable based approach? The deliverable based approach means that countries have to set targets. Sorry. So every country basically has to set targets, and they have to sit down with the WHO teams and basically undertake mass level awareness generation about diabetes as a rising disease. And specifically in a country like India, the younger population has now become more vulnerable to diabetes because of the poor eating habits and also because of the COVID, and specifically the COVID related infections that have happened in the second wave. It has been found in India that diabetes has taken a rise because of the drugs that were used to treat the patients for the second wave. So this is again a point that you need to keep in mind because it was there in the news. Now we come to this next thing, that is the Immunization Agenda 2030. Please remember, this is a important thing where UPSC can play a game with you. I'll tell you what trap they can play with. First thing to remember, friends, is that the Immunization Agenda 2030 was launched by 3 important organizations. Unlike the first one, Diabetic Compact that we just saw, which was only by WHO here. So Immunization Agenda 2030 has been launched basically by WHO. It has been launched by Gavi, the Vaccine Alliance which is there, and also the UNICEF. Now, what is the objective here? The objective here is to undertake provision of free vaccines for preventable diseases. So there are some diseases that can be prevented basically by undertaking vaccination as such. So what this agenda has decided is that by 2030, as a global approach, there needs to be availability of free vaccines to all countries
फॉर टैकलिंग प्रिवेंटेबल डिजीजेस। सो यहाँ पर यूपीएससी क्या कर सकता है, वो आपको ये कह देगा कि इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 हैज डिसाइडेड दैट बाय 2030 देयर विल बी फ्री वैक्सीन्स टू प्रोटेक्ट ऑल द पीपल फ्रॉम वायरल इन्फेक्शंस। देखिए इतना बेवकूफ़ तो यूपीएससी नहीं है कि वो बोलेगा कि कोविड इन्फेक्शन, उसको भी मालूम है 2030 तक तो कोविड रहेगा नहीं, ठीक है। तो ये बोल देगा कि फ्री वैक्सीन्स फॉर प्रिवेंटिंग वायरल इन्फेक्शंस इन फ्यूचर। तो ये एक छोटा सा ट्रैप है, और मोस्ट ऑफ द पीपल विल थिंक कि हाँ ये बात सही भी हो सकती है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस आज की डेट में न्यूज़ में चल ही रहे हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी, बट यहाँ पर वायरल इन्फेक्शन का कोई लॉजिक नहीं है सर। तो जो पॉइंट आपको याद रखना है वो ये है जो मैंने आपको बताया कि द वैक्सीन इज गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर प्रिवेंटेबल डिजीजेस, ठीक है जी। Next one is Glow Litter Partnership Project. So this was again a very important project that is there in the news. It has been launched basically by IMO, International Maritime Organization, and the FAO, Food and Agriculture Organization. तो यहाँ पर WHO नहीं है दोस्तों, यहाँ पे FAO है, ये चीज़ याद रखिएगा। It is also basically funded by Norway। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए यहाँ पर जो ये वर्ड है लिटर, इसी से हमें समझ आ जाता है कि यहाँ पर बेसिकली हमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करना है किसी चीज़ का, और वो है यहाँ पे कोई और दूसरा इन्वायरमेंट नहीं बल्कि मरीन इन्वायरमेंट। सो द ऑब्जेक्टिव हियर इज टू बेसिकली प्रोटेक्ट द मरीन इन्वायरमेंट एंड प्रोटेक्ट द मरीन इन्वायरमेंट फ्रॉम लिटर इन द ओशंस विच में happen to come due to फिशिंग एक्टिविटी इन द ओशंस। जब फिशिंग होती है तो लिटर का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है, खास करके अगर इंडिया जैसी कंट्री या कोई डेवलपिंग कंट्री फिशिंग करती है तो इतने सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस आज की डेट में नहीं है, तो लिटर इन द ओशन राइजेस बिकॉज ऑफ दैट। एंड ऑल्सो टू इंश्योर कि भाई लिटर दैट में अराइज ड्यू टू मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट। सो मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट रिमेन्स वन ऑफ द डोमिनेंट मोड्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड टुडे। So as a result of which maritime transport is one of the biggest contributors of marine litter apart from many other sources which are there. So इन दोनों से लिटर का प्रोडक्शन रुकना, कम होना, ये श्योर करना कि भाई मरीन एनवायरनमेंट जो है वो प्रोटेक्ट हो जाए। तो प्रोटेक्शन ऑफ मरीन लिटर इज द लार्जर ऑब्जेक्टिव हियर। अब ये एक आपको और याद रखना है साथ में जो पोटेंशियल बैकवर्ड लिंकेज बन सकता है कि मरीन लिटर को लेके जो ग्लोबल लेवल पे रेगुलेशंस हैं वो है मार्पोल रेगुलेशन, ये आईएमओ का है। लंदन कन्वेंशन टू प्रोटेक्ट मरीन एनवायरनमेंट फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज 1972, ये एक और एक ऐसा प्रोटेक्शन वो है ग्लोबल लेवल कन्वेंशन जो मरीन लिटर को प्रोटेक्ट करता है और इंश्योर करता है कि मरीन लिटर जो है स्प्रेड ना करे, तो उसका स्प्रेड रोकने वाला ये कन्वेंशन है। एंड ग्लोबल प्रोग्राम फॉर द एक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ मरीन एनवायरनमेंट फ्रॉम लैंड बेस्ड एक्टिविटीज विच हैज बीन अ पार्ट ऑफ द यूएनईपी। तो ये 3 कन्वेंशन आपको बैकवर्ड लिंकेज के तहत याद रखने हैं, ठीक है जी। अब हम आते हैं पेरिस कॉल पे। सो व्हाट इज पेरिस कॉल फ्रेंड्स? पेरिस कॉल वाज बेसिकली लॉन्च्ड इन 2018 in France, and it is basically an approach with 9 principles for safeguarding the cyberspace। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेरिस कॉल हैज नथिंग टू डू विद द इन्वायरमेंट हियर, ये बेसिकली साइबर स्पेस प्रोटेक्शन के लिए एक अरेंजमेंट बनाया गया है। इट एम्स टू बेसिकली एड्रेस the rising cyber threats that the countries are witnessing and also promote cooperation between the government and the private sector, you know, to ensure that holistically we are able to address the growing cyber threats। तो ये एक यूनिक फीचर है इसका कि ये सिर्फ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव नहीं है, बट एक ही अमेलगमेशन अप्रोच है, कोऑपरेटिव अप्रोच, वेयर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर विल कम टुगेदर टू बेसिकली प्रमोट सर्टन प्रैक्टिसेस दैट बेसिकली हेल्प टू स्ट्रेंथन द साइबर स्पेस एज सच। तो सिक्योरिटी इशूज के कोर्स में उस टाइम पे मैं आपको साइबर स्पेस आर्किटेक्चर और इंडिया का क्या साइबर स्पेस आर्किटेक्चर है, क्या थ्रेट्स होते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो यहाँ पर वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है। अच्छा, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वो ये है पेरिस कॉल का कि इंडिया जो है इट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ इट। तो कहीं से भी इस चीज़ को गलती से भी गलत मत कर दीजिएगा एग्जाम में।
कि भाई इंडिया यहाँ का मेंबर है। इंडिया मेंबर नहीं है पेरिस कॉल का। ये 9 प्रिंसिपल्स जो है साइबर स्पेस को प्रोटेक्ट करने के लिए बने हैं। फ्रांस का खुद का इनिशिएटिव है जो उन्होंने लॉन्च किया है। हाँ, ये जो अब आता है इंपॉर्टेंट, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दिस हैज बीन बेसिकली फॉर्म्ड बाय 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। एंड यहाँ पे इंडिया जो है एक पार्ट है इसका। तो ये जो 3 कंट्रीज को जय भी बोला जाता है, इसका एक शॉर्ट फॉर्म बन रहा है जो साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया में यूज किया जा रहा है। सो सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव हैज बीन फाउंड बाय जय, दैट इज जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ये है कि बेसिकली वी हैव टू डाइवर्सिफाई सप्लाई चेन पार्टनर्स। ये देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बताऊंगा अभी। फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। अब हुआ क्या है कि देखिए जब से ये कोविड क्राइसिस हुआ है, तो कोविड क्राइसिस की वजह से क्या हुआ है, मोस्ट ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन्स वर बेसिकली लिंक्ड टू चाइना। So most of the supply was coming from China to other countries. But because of the COVID, countries imposed restrictions, and also due to COVID, many countries became upset with China for not taking adequate steps in basically ensuring, the rapid spread of the virus. So as a result of which, the global relationship of many countries, not all, but many countries has come under a strain. For example, Australia has now had a very negative relationship with China. जबकि ऑस्ट्रेलिया चाइना ऑलवेज हैड अ वेरी डीप रिलेशनशिप। इनफैक्ट इट्स वेरी सरप्राइजिंग टू नो, मैंने अपने आईआर के बुक में भी ये पॉइंट दिया है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया का चैप्टर पढ़ेंगे, कि वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में देयर वर मेनी प्राइम मिनिस्टर्स हु वर मैंडरिन स्पीकिंग प्राइम मिनिस्टर्स, व्हिच रिफ्लेक्ट्स द डेप्थ दैट द कंट्री वाज अटैचिंग टू चाइना एज सच। एंड सेम इज द केस विद जापान। जबकि जापान चाइना के रिलेशंस काफ़ी ख़राब रहे हैं, और अभी जून के महीने में वो सेंकाकू आइलैंड का इशू भी रहा है न्यूज़ में, तो मैं आपको वो नेक्स्ट मंथ कराऊंगा, तो हम देखेंगे उसको। तो एक चीज़ ये है कि दीज कंट्रीज विच वर ऑल डिपेंडेंट अपॉन चाइना फॉर सप्लाई चेन एंड इम्पोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, दे हैव बेसिकली डिसाइडेड टू डाइवर्सिफाई एंड इंक्लूड मल्टीपल सोर्सेज नाउ। सो आप ये नहीं कह सकते कि भाई द सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव इज एंटी चाइना। वी कैन नॉट से इट इज एंटी चाइना, बिकॉज ये चाइना को टारगेट कहीं नहीं कर रहा है। ये सिर्फ ये कह रहा है कि वी विल डाइवर्सिफाई द सप्लाई चेन पार्टनर्स फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज नाउ। इनफैक्ट द ब्यूटी ऑफ दिस इनिशिएटिव इज दैट इट इज नॉट इवन नेम्ड चाइना एज सच। तो कल को अगर यूपीएससी ये स्टेटमेंट दे देता है ना दोस्तों कि सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव इज डिजाइंड एज एन एंटी चाइना इनिशिएटिव टू टीच चाइनीज अ लेसन और समथिंग लाइक दिस, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो जबकि इंटेंशन वही है कि हम चाइना से थोड़ा सा दूरी बना के रखें और चाइना पे ओवरटली डिपेंडेंट ना हो जाए, बट यहाँ पर एक चीज़ जो याद रखनी है वो ये है कि बेसिकली हम लोगों ने वर्ड चाइना यूज़ नहीं किया है। एंड यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये है कि सप्लाई चेन मल्टीपल सोर्सेज से आए, ठीक है जी। तो ये चीज़ को दोस्तों को ज़रूर याद रखिएगा। अब आ जाते हैं रीचिंग ज़ीरो फोरम पे, ठीक है। रीचिंग ज़ीरो फोरम जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। एंड ये बेसिकली लॉन्च हुआ है वर्ल्ड मलेरिया डे के दिन। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू एलिमिनेट मलेरिया। सो WHO ने जो टारगेट रखा है वो ये टारगेट रखा है विच इज कॉल्ड E2025। सो E2025 मीन्स एंड मलेरिया इन 25 स्टेट्स बाय 2025, ठीक है। तो 2025 तक मलेरिया ख़त्म करना है, ऐसी दवाई बना लेनी है जिसको छिड़कने से मलेरिया होए ना, या कुछ भी करें, एलिमिनेट करना है। बट ये चीज़ याद रखिएगा कि ये टारगेट शिफ्ट होता जा रहा है। तो WHO ने पहले टारगेट रखा था कि E2020, अब वो 2020 में तो अचीव हुआ नहीं, तो अब इन्होंने वो उसको शिफ्ट करके यहाँ पे कर दिया कि भाई 2025। तो इस तरीके से ये टारगेट शिफ्ट होता जा रहा है। तो वेदर दिस विल बी अचीव्ड दिस टाइम और नॉट इज समथिंग विच इज डिबेटेबल, बट दिस फोरम हैज़ नाउ बीन क्रिएटेड विद द लार्जर ऑब्जेक्टिव टू अचीव द गोल सेट बाय द WHO हेयर, ठीक है जी। तो ये बेसिकली बॉडीज थी, फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स थे जो न्यूज़ में थे, और ये सारी हमने समिट्स वगैरह पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो IR का पोर्शन मई का कंप्लीट हो जाता है। जून के करंट अफेयर्स का जो IR का पोर्शन है उसके रिलेटेड मैं आपको कंटेंट वर्कबुक में ही दे दूंगा, ताकि आपको उसके रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो और वर्कबुक में आप वीडियो के साथ साथ लिख सकें। तो अगले महीने मिलते हैं IR को कंटिन्यू करने के लिए, एंड वी विल कंटिन्यू द करंट अफेयर सीरीज नाउ। थैंक यू।